Okay, so good evening everyone, good afternoon everyone. Today in today's class we will be dealing with the number system with which we are familiar up to some extent. कुछ extent तक हम लोग familiar हैं, but बाकी extent तक हम लोग familiar नहीं हैं. So we will be dealing with this topic in with detail starting from the scratch. अगर हम नंबर्स की बात करें, नंबर्स की बात करने से पहले वी विल टॉक अबाउट द ह्यूमन सिविलाइजेशन. जब ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी तो पीपल यूज्ड टू लिव इन फॉरेस्ट, राइट? देन ग्रेजुअली व्हाट हैपेंड, दे स्टार्टेड काउंटिंग द थिंग्स. उन्होंने बोला कि चलो दिस इज वन, this is two, this is three, this is four. Like this they started counting the things. So ये जो numbers आए जिनको उन्होंने counting के लिए use किया था, these numbers were called as the natural numbers, जिसको हम लोग प्राकृतिक संख्याएं भी बोलते हैं. नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स हुए जिन नंबर्स का प्रयोग हम लोगों ने काउंटिंग के लिए किया. Then what happened after that, and more after that one more number was added to the series of this natural number, and this number was called as zero. तो zero जब add हो गया हमारी series में, then the whole series began to be called as the series of whole numbers. पहले natural number आया, नेचुरल नंबर के बाद फिर होल नंबर सर. उसके बाद क्या हुआ सर, उसके बाद धीरे धीरे जब आगे आगे चलते गए तो people decided some notations. What notations they decided? For example, something is coming to me. For example, if somebody is giving me something, so that will be denoted by plus. If somebody is taking from me something, so that will be denoted as minus. अगर मेरे पास किसी ने कुछ दिया तो मुझे प्लस मिला, अगर मैंने किसी को कुछ दिया तो वो क्वांटिटी मेरे पास से चली गई. सो दिस वाज कॉल्ड एज negative or minus. Using this, they use this concept to the natural numbers. They use this concept to the natural numbers, and gradually there came and gradually we had we had a new set of numbers that was called as integers. अब integers क्या होते थे सर? Integers में हमारे positive natural number, negative positive natural number और negative natural number plus the whole number that was given to us, that is plus the number zero. This all included the set of integers. अब इन इंटीजर्स के बाद हमारे पास एक और नंबर आया, दैट वाज कॉल्ड एज फ्रैक्शन. अब फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन को कैसे समझेंगे? देखो फ्रैक्शन को हम ऐसे समझते हैं, सपोज इन ए रूम देयर आर फोर पर्सन्स. ओके, in a room there are four persons and one person went out. In a room there are four persons and one person went out. So I want to tell what how many person, what portion of total person went out. So I will say that one out of four went out. Like आज की डेट में अगर हम, if I want to represent it with the current situation, currently the infection rate in Delhi is say 10%. If it is 10%, it means that out of 10, every one person is infected uh, by this pandemic. So out of 10, every one person is infected by this pandemic. So I will say that the infection rate is 1 by 10. This type of representation of a number, this type of representation of a number in the form of P by Q, in the form of P by Q, where P and Q are whole numbers and Q is not equal to 0, is called fraction. This type of representation of number in the form of P by Q, where Q is not equal to 0 and P and Q are whole numbers, is called a fraction. यहाँ पे 0 by 10 भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे 10 by 10 भी हो सकता है. So इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन को हम फ्रैक्शन बोलते हैं. Now again the fractions are further classified as proper and improper fraction, proper fraction, improper fraction and mixed fraction. Proper fraction is those type of fractions in which numerator is less than the denominator,
Improper fraction is that type of fraction in which the numerator is greater than the denominator, and mixed fraction are those type of fractions that contains the whole number part as well as the fractional part. सारी चीजें हम लोग पुरानी क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू गिव मच स्ट्रेस ऑन इट. नेक्स्ट इज रैशनल नंबर. अब सर ये रैशनल नंबर क्या होता है? अब जा ध्यान से सुनो, क्योंकि हमारे आगे अगली दो क्लासेस 9th standard and 10th standard will depend upon your understanding of rational number and irrational number. सब कुछ रैशनल नंबर की अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है. अच्छा, इसके अलावा एक चीज और थी जो हम लोगों से छूट गई. Natural numbers were further classified into two categories, that is called as even numbers and odd numbers. सर ये even number क्या होता है और odd number क्या होता है सर? Even number वो number होते हैं, even number वो number होते हैं which are divisible by 2. Odd numbers वो numbers होते हैं which are not divisible by 2. Even number divisible by 2, odd numbers not divisible by 2. ठीक है, तो ये हो गया भाई इवन नंबर और ऑड नंबर. इसके आगे अगर हम बात करें तो देन वी हैव अनदर सेट ऑफ नंबर व्हिच आर कॉल्ड एज प्राइम नंबर. सर अब ये प्राइम नंबर्स क्या आ गए? अभी तक तो ठीक है, अभी तक तो समझ में आ रहा था. अब ये प्राइम नंबर क्या होते हैं सर? सी, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से और खुद से डिविजिबल हो. ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल द नंबर 2 इज डिविजिबल बाय 1 एंड 2, इसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है. द नंबर 13 इज डिविजिबल बाय 1 एंड 13, इसके अलावा ये नंबर और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है. द नंबर 23, this number is also divisible by only 1 and 23, इसके अलावा ये नंबर और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है. बहुत अच्छा सर, वेरी गुड. कैन यू गिव मी सम. अब सर तो जो नंबर प्राइम नहीं होते उनको हम क्या बोलते हैं? These type of numbers are called as composite numbers. जो नंबर प्राइम नहीं होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं. कौन कौन से कंपोजिट नंबर होते हैं सर? जो प्राइम नहीं हुए वो कंपोजिट नंबर हो गए. कौन कौन से? 4 किस किस से डिवाइड होता है? कैन यू प्रूव इट व्हाट यू आर सेइंग? कैन यू गिव सम एग्जांपल? यस आई कैन. द नंबर 4 इज डिविजिबल बाय 1, 2 and 4. The number 6, it is divisible by 1, 2, 3 and 6. The number 12, it is divisible by 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 6 and 12. ठीक है, तो ये इस टाइप के जो नंबर. द नंबर 9, इट इज डिविजिबल बाय 1, 3 and 9. सो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं जो खुद से 1 से इसके अलावा किसी और भी नंबर से डिवाइड हो, सच टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड एज कंपोजिट नंबर्स. एक और कंसेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड एज को-प्राइम. अब सर ये को-प्राइम क्या होते हैं? को-प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो. Co-prime numbers are in the next slide. Each and every definition is written, so don't worry about it. Co-prime numbers are those numbers जिनका common factor या जिनका highest common factor 1 हो. What do you mean by this, sir? Sir, what I mean here is take two numbers, say 2 and 3. इसका जो highest common factor है ये 1 है. Take two numbers, say 23 and 24. इन दोनों नंबर्स का जो HCF है सर ये क्या है? ये भी 1 है. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि को-प्राइम नंबर्स में जो दोनों नंबर हो वो प्राइम हो. नॉट नेसेसरी, बट व्हाट इज नेसेसरी हियर इज देयर HCF शुड बी 1. कैन यू गिव मी वन मोर एग्जांपल ऑफ द नंबर्स व्हिच आर नॉट प्राइम बट दे आर को-प्राइम? यस आई कैन. 33 and 35. These two numbers have only one factor as common, that is 1. इसके अलावा इन नंबर्स का कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है. इसके देखो इसके फैक्टर्स क्या क्या है? 1, 3,
11, इसके फैक्टर्स क्या क्या है 1 5 7, तो द ओनली कॉमन फैक्टर इन द टू नंबर्स इज 1. The only common factor in the two numbers is 1. So this is a co-prime number. This is the co-prime number. एक बात इंपॉर्टेंट बात जो हमने यहाँ पे सीखी वो ये सीखी सर कि जो को-प्राइम नंबर्स होते हैं जरूरी नहीं है कि वो दोनों नंबर्स आपस में इंडिविजुअली दोनों नंबर्स प्राइम हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं होता है. ये बहुत बड़ी गलती है जो बच्चे करते हैं. आप लोग उस कैटेगरी में नहीं आते हो तो मत करना. आगे बढ़े. किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो भाई. नो सर. नो सर. गुड सर. हाँ बोलिए. Sir, can any two consecutive number be co-prime? Yes. Take any two consecutive number. Take any two consecutive number. सर 7 and 8. 60. 7 and 8. 7 and 8 का जो HCF है वो 1 होता है. Yes sir. 99 and 100. 99 and 100 का HCF क्या सर होता है? आपकी आवाज चली गई. आवाज चली गई. नहीं सर आ रही है. सर मैं नहीं सुन पा रही. सर अच्छे से सुनाई दे रहा है. Take any two numbers, say 99 and 100. The two numbers are what? Co-prime. The two numbers are co-prime. So any two consecutive natural numbers are co-prime. अब यहाँ पे बात चालू हुई है तो एक बात और कर लेते हैं. One is neither prime nor composite. One जो है it's a special number. It is neither prime nor composite. आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ के बात करते हैं. अब हम बात करने जा रहे थे रैशनल नंबर्स की. सर ये रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? बहुत नाम सुना है लेकिन आज तक कभी डेफिनेशन समझ में नहीं आई सर. क्या होते हैं रैशनल नंबर? अब सुनो मेरी बात. A number that is expressed in the form of P upon Q, where Q is not equal to 0 and P and Q are co-prime. Such type of numbers are called rational numbers. क्या बोला मैंने? फिर से रिपीट करता हूँ. A number that is expressed in the form of P and Q, where Q is not equal to 0 and P and Q are co-prime. एक कंडीशन और है, P and Q are integers. P and Q are integers. इस टाइप के नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स. ठीक है सर. एग्जाम्पल ले लेते हैं. 1/2, 2/1, -5/1, -5 upon -1, कुछ भी ले लो. 2/4. 2/4 is also a rational number, although it is not written in the simplified form, but I can write it in the simplified form also. तो इसको simplify करेंगे तो it will reduce to 1/2. 4 is also a rational number. So इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं उसे हम रैशनल नंबर बोलते हैं. कंडीशन बस इतनी सी होनी चाहिए कि Q is not equal to 0 and P and Q are co-prime. अब यहाँ पे P and Q co-prime तो नहीं है तो I can simplify it as 1/2. हम लोगों ने अब देखो ये जो रैशनल नंबर है it is basically a ratio only. 1/2 या 2/4. रेशियो में हमने क्या पढ़ा था? एक न्यूमरेटर, एक क्वांटिटी को जब अपन दूसरी क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं दैट गिव्स मी रेशियो. और हमने रेशियो में ये भी पढ़ा था कि if I multiply a ratio by same numerator by same number then the ratio doesn't changes. तो ये जो 1/2 है इसके दोनों टर्म्स को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. इट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू जो भी रिजल्ट आया 2/4 इट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू 1/2 ओनली. इट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू 1/2. तो कहीं पे अगर आपको 2/4 लिखा है वहां पे 2/4 को देख के घबराने का नहीं कि सर ये तो रैशनल नंबर है ही नहीं. इट इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर, although not expressed in the lowest form, but it is also a rational number. ठीक है. इरेशनल नंबर क्या होते हैं? अब आगे सवाल आता है कि सर ये इरेशनल नंबर क्या होता है? सिंपल सी बात है भाई,
A number that is not a rational number is called as an irrational number. एक ऐसा नंबर जो कि रैशनल नंबर नहीं है वो नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है. I will tell you more about irrational numbers when we will discuss this irrational number in the later part of the chapter. But first of all, we should focus more about rational numbers only. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. किसी को कोई समस्या है यहाँ तक तो पूछ लो भाई. No, sir. No sir. चलो आगे बढ़ते हैं. Okay, again the same thing that we have discussed till now. What are natural numbers? Natural numbers are the counting numbers. Counting numbers को natural numbers बोलते हैं. Whole numbers क्या होते हैं? All natural numbers together with zero form the collection of whole numbers. Integers, all the whole numbers and the negative of natural number form the collection of all the integers. Then comes the rational number, the number which can be expressed as in the form of p by q, where p and q are integers. यहाँ पे एक चीज नहीं लिखी हुई है, वो ये नहीं लिखी हुई है कि p and q are co-prime. In 10th standard, when you will study the same definition, then you will see that p and q are co-prime. ये कई जगह लिखते हैं, कई जगह नहीं लिखते हैं. तो आपसे अगर कोई पूछता है what are rational numbers, तो you should tell that p and q are co-primes. Okay. For example, 2 by 3 minus 37 by 15 etc. are called as rational numbers. All natural number, whole number and integers are rational numbers. Next is prime number की अगर हम बात करें, prime numbers are the natural numbers greater than 1 and each of which is divisible by 1 and itself only. एक बात याद रखना, negative numbers के लिए prime और composite का concept नहीं है. For negative integers, there is no concept of prime and composite. Okay. Then comes prime numbers. Prime numbers हो गए, composite numbers हो गए. Composite numbers are all the natural numbers greater than 1 which are not prime numbers. ऐसा number जो कि 1 से बड़ा है पर वो prime number नहीं है, such numbers are called as composite numbers. Next is co-prime number. अब सर ये co-prime number क्या होता है? If the HCF of the given number not necessarily prime, if the HCF of two given numbers is not necessarily prime, then they are known as the co-prime number. For example, 4 and 9 are co-prime as HCF of 4, 9 is 1. Even numbers वो numbers हो गए जो कि 2 से divide होते हैं. Odd numbers वो numbers हो गए जो कि 2 से divide नहीं होते हैं. कोई समस्या यहाँ तक? हाँ या ना? जल्दी बताओ. No, sir. No, sir. नो सर. आगे बढ़े सर. Yes, आगे sir. चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं. किसी को कोई समस्या नहीं है? पक्का? Yes, चलो sir. भाई, किसी को कोई समस्या नहीं है तो मुझे एक समस्या आ रही है. ये सवाल है, इस सवाल का जवाब बताओ मुझे. इज 39, 93 a co-prime? Yes. Yes. Okay. One boy gave the answer as yes. चलो एक बच्चे ने बोला yes. No और sir. कौन है? No sir. No sir. No sir. No sir. Yes sir. Because No sir. No sir. अच्छा. Okay. My. No, sir. Okay. No, No sir. sir. No sir. कितने ऐसे No, बोल sir. रहे हैं? Okay. No sir. Okay. Anybody else who is saying that these two numbers are co-prime? क्लास में कोई ऐसा है जो बोल रहा है कि these two numbers are co-prime? Anybody else except one boy? No, sir. No sir. Very good sir. चलो देखते हैं co-prime है या नहीं है. मुझे भी नहीं पता, चेक करना पड़ेगा भाई. देखो हमने co-prime की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? Co-prime नंबर वो नंबर होता है, कौन सा नंबर होता है? जिनका HCF 1 हो. अब जरा HCF निकाल लेते हैं. तो HCF कैसे निकालते हैं? HCF निकालने का एक ही तरीका होता है जो हम बचपन से लेकर 9th क्लास तक पढ़ते आ रहे हैं, बल्कि 10th में भी वही तरीका पढ़ेंगे. वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन. कर दो भाई प्राइम फैक्टराइजेशन. दिस इज 3 into 30. अब मैं into 1 नहीं लिखूंगा यार, प्लीज. चलो लिख लो यार. दिस इज 93 is 1 into 3 into 31. ठीक है भाई. 93 is 1 into 3 into 31 and this is
1 into 3 into 13. अब यहाँ पे इसका HCF क्या है? HCF is 3. HCF is 3. Therefore, these numbers are not a co-prime. बात समझ में आ गई? क्यों ये नंबर्स को-प्राइम नहीं है? ये नंबर्स को-प्राइम इसलिए नहीं है बच्चे, क्योंकि यहाँ पे जो HCF है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो 3 होता है। 3 आ रहा है। HCF कैसे निकालते हैं? पहले प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दो, फिर जो सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर हो वो मेरा HCF हो जाएगा। और अगर यही मुझसे बोला जाए कि कैन यू टेल मी द LCM ऑफ 39 and 13? Yes, I can tell you without actual multiplication. I can tell you the LCM of 39 and 13. LCM वो नंबर होता है जो कि 39 से भी डिवाइड हो जाए और 93 से भी डिवाइड हो जाए. That means if I want to write LCM in the form of prime factors, how I will write? 1 तो एक बार है तो 1 को लिख दो, मल्टीप्लाइड बाय ये जो 3 है ये 2 बार है, 3 इसमें भी है इसमें भी है, तो हम एक ही बार 3 को लिखेंगे. अगर मान लो 3 इसमें 3 बार होता और इसमें 3 2 बार होता तो हम 3 को कितनी बार लिखते? 2 बार. 2 बार लिखते. तो हम HCF लिखते टाइम हम हाईएस्ट पावर ढूंढते हैं. LCM लिखते टाइम हम क्या करते हैं? जो लोएस्ट जो पावर जितनी बार रिपीट हो रही है उतनी बार इसको लिख देते. सपोज करो यहाँ पे ये 1 into 3 into 3 होता तो फिर हम यहाँ पे 3 स्क्वायर लिखते. ठीक है, अभी फिलहाल तो 3 into 3 नहीं है तो इसे छोड़ दो. तो ये हो जाता 1 into 3 into 13 into 31. तो जो हमारा LCM होता वो कुछ इतना हो जाता और जो HCF है ये 3 हो जाता. We will deal about this thing in big detail when we will study these things next year. But अभी जब बात चल रही थी तो सुन लो, कोई बुरा नहीं है. ठीक है. I guess 9th class and 10th class are interlinked. कई बार ऐसा होता है कि 9th क्लास की कई सारी चीजें जो हमें 10th में पढ़नी होती है वो हम 9th में ही पढ़ लेते हैं. अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो कंसेप्ट अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ये कंसेप्ट हम 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ते हैं. चलो देखो, रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म. भाई हम जो है किसी भी नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. किसी भी नंबर को अपन डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं. तो अगर मान लो अब डेसिमल फॉर्म में अगर हम लिख रहे, डेसिमल फॉर्म में लिखना मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देना. तो 2 केसेस आते हैं. कौन कौन से 2 केसेस आते हैं? एक केस होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल का. 3 केसेस आते हैं बेसिकली. एक केस आता है टर्मिनेटिंग का, दूसरा केस आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग का, और तीसरा केस आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का. चलो तीनों केसेस को एक एक करके डिस्कस करते हैं. अगर हम टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 को 8 से डिवाइड करता हूं, व्हाट आई विल गेट? 1 को अगर मैंने 8 से डिवाइड किया तो आई एम गेटिंग द आंसर 0.125. आप लोग चाहें तो आप लोग वेरीफाई करके देख सकते हैं. 1 को अगर मैंने 8 से डिवाइड किया तो आई एम गेटिंग द आंसर 0.125. इसके आगे ये नंबर प्रोसीड नहीं करेगा. अगर मैंने 1 को मान लो 25 से डिवाइड किया तो यहाँ पे मुझे मिला आंसर 0.04. इसके आगे ये प्रोसीड नहीं करेगा. अगर मैंने 3 को 20 से डिवाइड किया तो मुझे मिला 0.15. 1 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो मुझे मिला 0.5. देयर इज समथिंग पिक्यूलियर इन दिस. क्या पिक्यूलियर है सर? देखो, अगर कोई रैशनल नंबर जो कि P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, और अगर ये जो Q है, if this Q can be expressed as 2 raised to the power m multiplied by 5 raised to the power n, where m and n are whole numbers, then
ये जो नंबर होगा p by q, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो हमने एग्जाम्पल लिए थे, ये 1/8 है, 8 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 raised to the power 3, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है सर, दूसरा एग्जाम्पल ले लें। यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल लिया था 20 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, तो यहाँ पे भी जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। मैंने क्या बोला था, m एंड n बिलोंग्स टू होल नंबर, होल नंबर में जीरो भी आता है। फॉर एग्जाम्पल 1/25, यहाँ पे 25 जो है, this 25 can be expressed as 5 raised to the power 2। यहाँ पे 2 की पावर नहीं है, 2 की पावर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 0 है। ठीक है, तो 2 की पावर 0, that is satisfying my definition of m and n, therefore 1/25 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मतलब जब 25 को मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो लास्ट में एक स्टेज आएगी जहां पे रिमाइंडर मेरा 0 होगा, उसके आगे मैं डिवीजन को नहीं ले जा सकता। करके दिखाऊं डिवीजन, जरूरत है क्या? देख लो, सर चलो नहीं समझ आ रहा। देख लो, चलो 20 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो कैसे डिवाइड करेंगे भाई, सबसे पहले तो 0 जाएगा, ये 3 आ जाएगा, फिर क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। अब यहाँ पे एक 0 आ गया, 21 = 20, यहाँ पे 20 आया, 10 आया, एक चूंकि हमने डेसिमल लगा दिया तो एक 0 हमारे पास बाय डिफॉल्ट आ जाता है। फिर यहाँ पे 0.15 लेंगे, 25 × 100 माइनस किया, 0 हुआ। ठीक है, अब इसके आगे डेसिमल नहीं जाएगा, इसके आगे डिवीजन नहीं हो सकता, सो दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग, राइट? इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। तो ये टर्मिनेटिंग इसलिए था, ये टर्मिनेटिंग इसलिए था बच्चे क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 raised to the power n मल्टीप्लाइड बाय 5 raised to the power m जैसा कुछ था, और वेयर m एंड n आर होल नंबर्स। ठीक है, ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब ये क्या है सर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग? आप तो अजीब अजीब सी चीजें बोल रहे हो। अजीब अजीब कुछ नहीं बोल रहा हूँ। देखो, अगर मैंने 3 को 1 से डिवाइड किया, 1/3 का मैं डेसिमल एक्सपेंशन लिखना चाहता हूँ, तो पहले तो 0 जाएगा, 1 आएगा, फिर हम पॉइंट लगाएंगे, तो पॉइंट लगाने के बाद एक 0 बाय डिफॉल्ट आ जाता है। 3 3 = 9, 9 माइनस किया, 1 बचा, फिर एक 0 आया, फिर 3 3 = 9, 9 माइनस किया, 1 बचा। इस डिवीजन को मैं जितने स्टेप तक चाहूं उतने स्टेप तक ले जा सकता हूं। ठीक है, इस डिवीजन को मैं जितने स्टेप तक चाहूं उतने स्टेप तक ले जा सकता हूं। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 0.33333 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से इसका रिजल्ट आता जाएगा। इसका मतलब जानते हो दया क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों? क्योंकि कहीं पे भी इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। रिपीटिंग क्यों? क्योंकि द कोशिएंट इज ऑलवेज 3। अब देखो, डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस कैन अराइज। कैसी सिचुएशन सर? द रिपीटिशन कैन हैपन आफ्टर 1 place of decimal also, the repetition can happen after 5 places of decimal also। चलो एक सवाल देता हूं, चेक करके बताओ। टाइम है आपके पास 30 सेकेंड्स। 1/7 इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। नहीं, इससे सर मैं पहले बोलूं? चलो कोई भी बोल दो। Is it non-terminating and repeating or it is terminating? Sir, it is non-terminating and repeating. It is non-terminating. Non-terminating and repeating. Can you tell me what is the decimal expansion? Sir, 0.142857. Okay, it is 0.142857142857 and dot dot dot. Basically, it will repeat after 6 places of decimal.
It will repeat after 6 places of decimal. तो अब हम कैसे पता करेंगे सर, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. अब हम कैसे पता करेंगे सर, इट्स अ बिग प्रॉब्लम. आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल इज इट गोइंग टू रिपीट? सो ऐसे नंबर्स, ऐसे रैशनल नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर में 2 raised to the power m multiplied by 5 raised to the power n नहीं आता हो, उन नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. ठीक है, बात समझ में आ गई? फॉर एग्जाम्पल 1/3 0.333, 1/7 0.142857 142857 बार. ठीक है, तो इस टाइप के नंबर्स जिनके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, उनका डिनोमिनेटर 2 raised to the power m multiplied by 5 raised to the power n के फॉर्म का नहीं होता है. किसी को कोई समस्या हो तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं. सर नहीं समझ आ रहा. क्या नहीं समझ में आया बताओ? सर नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर्स होते हैं जिनका डिनोमिनेटर 2 raised to the power m मल्टीप्लाइड बाई 5 raised to the power n के फॉर्म का नहीं होता. जैसे 7 है, 1/7 है, इसमें अगर मैं पूछूं क्या इसमें 2 की पावर कुछ है? 2 की पावर कुछ है बताओ? नहीं सर. नहीं है, तो इसमें हो गया 2 raised to the power 0. ये जो 5 है, क्या इसमें 2 की पावर कुछ है? नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर भी नहीं है, यहाँ पे 5 की पावर भी नहीं है. इसका मतलब ये जो 1/7 हुआ, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा. कुछ 2 प्लेसेस के बाद, 5 प्लेसेस के बाद, 10 प्लेसेस के बाद डेफिनेटली ये रिपीट करेगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें मान लो 1/9 की, क्या इसमें 2 की पावर है? क्या इसमें 2 की पावर है? नो सर. क्या इसमें 5 की पावर है? नो सर. नो सर. तो इसमें 2 की पावर भी नहीं है, इसमें 5 की पावर भी नहीं है. इसका मतलब जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा क्या होगा? वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा. ठीक है, समझ में आ गया? यस सर. आगे बढ़े? यस सर. यस सर. चलो. The next topic is representation of a rational number on a number line. अब हमें हमारे रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, तो भाई बहुत आसान सा तरीका होता है. हम क्या पहले ऐसा क्यों करते हैं भाई? देखो, these numbers are called as real numbers, so they can be represented on a number line. अभी फिलहाल हम लोग रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे. फिर बाद में इन द लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर हम लोग इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे. तो पहले हम सीखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ऑन द नंबर लाइन. ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन. क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? सक्सेसिव मैग्निफिकेशन. ठीक है, अब देखो हमारे पास जो स्केल होता है, आप लोगों ने जो स्केल देखा है उसमें मान लो 1 और 2 के बीच में देयर आर सम 10 डिविजन्स, राइट? 1 और 2 के बीच में देयर आर सम 10 डिविजन्स. तो 4.1 को यू कैन रिप्रेजेंट, 4.5 को यू कैन रिप्रेजेंट. बट अगर मैं आपसे बोलूं कि सर 4.57 को रिप्रेजेंट कर, so it will become a very tedious task to represent 4.57 on the number line. कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कुछ ना कुछ तो मेथड होगा. इस मेथड को हम बोलते हैं the way by which we represent these type of numbers is called as successive magnification method. ठीक है, चलो
ठीक है, चलो, we will deal with this method in the later part of the class. सबसे पहले हमें कुछ और चीजें सीखनी है. क्या सीखनी है सर? वो देखते हैं क्या सीखना है. First of all, we should learn to convert a recurring decimal into fraction. मान लो अगर मेरे पास 4.3333 इस तरीके से दिया हुआ है, तो how I will convert it into p by q form, that also I should know. एक बार ये मुझे पता चल जाए. See, I have two methods of representation of a number. This 4.3 bar I can also represent up to 2 places of decimal or up to 3 places of decimal, or I can also convert it into p by q form and then I can represent that number. तो पहले इसको सीखते हैं कि सर इसे p by q फॉर्म में कैसे करेंगे. तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, देखो, I will just tell you the steps. Take the mixed recurring decimal and let it be equal to x. For example, जैसे मुझे 4.3 बार को रिप्रेजेंट करना है, तो I took it as x. Now अब मुझे क्या करना है कि I have to count the number of recurring digits after the decimal point. Suppose I am having 3 recurring digits, उसको मैंने काउंट कर दिया और उसके बाद इस नंबर को मैंने बोला n. जैसे if I want to represent 4.33 on the number line, so what I will say, I will first of all assume this number as x. Then what I will do, I will count the number of recurring digits and यहाँ पे जैसे 2 आया तो I will name it as 2. Now what I will do, I will multiply both sides of the equation by 10 raised to the power 2. So I will have 4.33 multiplied by 100 will be equal to 100 into x. 4.33 multiplied by 100 will be equal to 100 into x. Now what I will do, I will subtract the two equations, this equation and this equation. इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करूंगा and then the result that I will get, that will be my number in the p by q form. क्या बोला, क्या समझाया, एक बार फिर से समझाइए सर, समझ में नहीं आया. सपोज करो, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. सपोज करो मुझे 4.3 बार को एज p by q फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. ठीक है, इसको करना है, तो चलो देखते कैसे करते हैं. This number can be written as 4.333 ... This number can be written as 4.333. What is happening? Just a minute. हाँ, this number can be written as 4.333 ... इसको अपन ने मान लिया x. क्या किया मैंने, इस नंबर को मान लिया मैंने x. अब देखो यहाँ पे जो मेरा रिपीटिशन हो रहा है, ये जो 3 है, यही 3 तो रिपीट हो रहा है ना. तो सिर्फ एक डिजिट है मेरा जो कि रिपीट हो रहा है. डेसिमल के बाद ओनली 1 डिजिट इज रिपीटिंग. सिंस ओनली 1 डिजिट इज रिपीटिंग, only 1 digit is repeating, 1 digit is repeating, therefore what I will do is I will multiply, therefore I will multiply my both side of the equation, therefore I will multiply side of the equation, I'll multiply both side of the equation by 10. Now what I am getting, 43.333 will be equal to 43.333 will be equal to 10x. What I did is, हमने सबसे पहले देखा कि हमारा जो डेसिमल है वो कितने प्लेसेस के बाद कितने डिजिट्स हमारे रिपीट कर रहे हैं. सिंस माय ओनली 3 इज रिपीटिंग, तो मैंने उस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो व्हाट आई गॉट, 43.333 इज इक्वल टू 10x. दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1
This is my equation number 2. Now what I will do is I will subtract my two equations. So basically what I am getting, erasing all the things, basically what I am getting, 10x minus x will be equal to 43.3 bar minus 4.3 bar. 43.3 बार माइनस 4.3 बार. अब क्या होगा देखो, ये जो 0.3 बार है, ये 0.3 बार दोनों कैंसिल हो जाएगा. दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 43 प्लस 0.3 बार minus of minus 4 plus 0.3 bar. So basically it will get cancelled. Finally I am 43 minus 4, which is equal to 39, which is equal to 39. एक मिनट, there is some mistake I did, right? No, हाँ ठीक है. So 43 minus 4 is equal to 39, and I am getting 9x is equal to 39. So x will be equal to 39 divided by 9. This is how 13 by 3. Which is equal to 13 by 3, or which will be equal to 4.333. This is how I express a number, a recurring decimal, into a fraction. Let us take few more examples. Okay. So if I want to, let me see if I'm having some examples or not. Okay, yeah, I'm having one example. I want to express 0.6 bar in the form P by Q. So let us learn this. एक बार फिर से करते हैं. Let x is equal to 0.6 bar. ठीक है. अब चूंकि डेसिमल के 6 के बाद ही, डेसिमल के बाद पहले डिजिट के बाद ही रिपीटिशन चालू हो गया है. So what I will do is I will multiply both sides by 10. So 10x will be equal to 6.6 bar. Now I will subtract the two equations. So I am having 10x minus x will be equal to 9x. That will be equal to 6 plus 0.6 bar minus 0.6 bar. हम ये बात जानते हैं, ये कैसे लिख दिया सर कि आपने कि 6 is equal to 6.6 bar is equal to 6 plus 0.6 bar. How can you write this? हम ये बात जानते हैं कि 1.3 is nothing but 1 plus 0.3, या 1.5 is nothing but 1 plus 0.5. ये बात हम लोगों ने बचपन में सीखी है. ठीक है. तो उसी तरीके से दिस 0.6 बार से डरने की जरूरत नहीं है. ये 0.6 बार कोई एलियन नहीं है. ये 0.6 बार सिर्फ इतना इंडिकेट कर रहा है कि सर ये जो 6 है ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये कभी भी एंड नहीं हो रहा है. अब जितनी बार उसको डिवीजन करना चाहो, वो लास्ट में आपको रिमाइंडर 1 या 2 जो भी यहाँ पे आ रहा होगा, इस केस में रिमाइंडर 1 आएगा. वो जो रिमाइंडर 1 आएगा वो आपको हमेशा मिलता ही रहेगा. ठीक है सर. तो ये 0.6 बार कैंसिल हो गया. सो x विल बी इक्वल टू 6 by 9 विच इज नथिंग बट 2 by 3. चाहो तो डिवाइड करके चेक कर लो, कि क्या आता है. ठीक है सर. चलो आगे बढ़े, एक एग्जांपल और देखते हैं. पिछले वाले एग्जांपल में किसी को कोई डाउट? सर लास्ट में समझ आया. लास्ट में नहीं समझ में आया. देखो लास्ट में हमने क्या किया, ये दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया तो 10x में से x गया तो 9x बचा, और इस 6.6 बार को मैंने 6 प्लस 0.6 बार लिख दिया. लिख सकते हैं हम ऐसा, ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया क्यों लिख सकते हैं. और माइनस 0.6 बार किया तो ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा मेरे पास कितना 6. तो 9x इज इक्वल टू 6, दैट गिव्स मी x इज इक्वल टू 2 by 3. ठीक है सर. अगला देखते हैं. नेक्स्ट इज 0.47 बार को, ओके दैट विल बी द लास्ट एग्जांपल ऑफ द डे. एक मिनट, द क्लास टाइमिंग इज अप टू 4:30 ना. ठीक. द नेक्स्ट इज 0.47 बार. अब इसे कैसे चेंज करें. लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार. ठीक है. अब यहाँ पे देखो दो प्लेसेस के बाद रिपीटिशन हो रहा है. ये क्या है बेसिकली 0.47 47 47 47 डॉट डॉट डॉट.
2 प्लेसेस के बाद डेसिमल रिपीट हो रहा है। तो पिछले केस में जब एक प्लेस के बाद रिपीट हो रहा था तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे 2 प्लेसेस के बाद रिपीट होगा तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? हियर आई विल मल्टीप्लाई बाय 100। तो देख लो भाई 100x विल बी इक्वल टू, जब हम किसी डेसिमल को 10 की पॉजिटिव पावर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो डेसिमल होता है बेटा वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है? राइट हैंड साइड पे। तो ये जो मेरा डेसिमल ये जो मेरा डेसिमल यहाँ पे था ये शिफ्ट होकर राइट हैंड साइड पे चला गया। तो ये बेसिकली हो गया 47.47 बार। That can also be written as 47 plus 0.47 bar. Now this is equation number 1. This is equation number 2. दोनों को घटा दो, घटाना मतलब subtract कर दो. Subtracting equation 1 from equation number 2. What I am having? 99x is equal to 47 plus 0.47 bar minus 0.47 bar, which is equal to 47. So x will be equal to 47 upon 99. This is how the question is to be solved. This is how the question is to be solved. एक मिनट, ये शायद दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट रुक जाओ. So this is equal to 47 upon 99. क्या ये बात समझ में आ गई? Say yes or no? Yes, sir. Yes. कोई ऐसा जिसको ना समझ में आया हो? नहीं, ठीक है, सबको समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। सर एक एग्जांपल और करें? जरूर करेंगे। देखो 0.123 बार, 1 2 और यहाँ पे 3 पे बार आया है। ये सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। एक काम करते, इसको थोड़ा नीचे लिखता हूँ। 0.12 और यहाँ पे 3 पे बार आया है। ये सिचुएशन थोड़ी सी अलग है, ठीक है। कैसे अलग है समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारा जो इनिशियल स्टेप था इसको x मान लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने पिछले स्टेप्स में जो किया था, पिछले क्वेश्चंस में जो हमने किया था, वहां पे डेसिमल के बाद हमारे पास रिपीट होने वाले नंबर्स थे। या तो एक नंबर रिपीट हो रहा था, या तो 2 नंबर रिपीट हो रहा था, या तो 3 नंबर रिपीट होंगे। लेकिन डेसिमल के जस्ट बाद हमारा रिपीटिशन स्टार्ट हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है? देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद पहले 1 और 2 है, उसके बाद फिर 3 आया है जो कि रिपीट हो रहा है। तो हियर द सिचुएशन इज लिटिल बिट डिफरेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंस यहाँ पे 2 नंबर्स हैं डेसिमल से पहले जिनके बाद रिपीटिशन चालू हो रहा है, तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.123 bar. Now 100x will be equal to 12.3 bar. Now 100x will be equal to 12.3 bar. लेकिन अभी भी मेरा काम नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है सर अभी भी काम? क्योंकि अब तो मैं यहाँ इस वाली कंडीशन पे आया ना, ये वाली कंडीशन तो अभी आई मेरे पास। अब देखो डेसिमल के बाद जो पहला डिजिट है वही डिजिट रिपीट हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई एम हैविंग 1000x इज इक्वल टू 123.3 बार। जिनको नहीं समझ में आया हो वो देख लो, 112.33333 डॉट लिखा होगा। अब अगर मुझे रिपीट करना है, अगर मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो माय डेसिमल विल शिफ्ट 1 प्लेस टू द राइट। तो ये हो जाएगा 123.3 बार। तो ये हो गया मेरा 123.3 बार। अब मैं क्या करूंगा, इस वाली इक्वेशन को, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो 1000 में से x माइनस 100x विल बी इक्वल टू, अब देखो ये कितना हो जाएगा, 123 प्लस 0.3 बार माइनस 12 माइनस 0.3 बार। 0.3 बार तो कैंसिल हो गया सर, बचा कितना, 123 में से 12 गया। बताओ कितना बचा, 123 में से 12 गया तो
111. So I am having, और इधर 1000 में से 100 गया तो कितना बचा? 900. So 900x is equal to 111. So x will be equal to 111 upon 900. This will be your answer of the question. एक सेकंड, हाँ, x will be equal to 111 upon 900. That will be your answer of the question. बात समझ में आ गई? Say yes or no? Yes, sir. Yes, sir. सभी लोगों को समझ में आ गई बात? Yes, sir. ठीक है, चलो। सर लास्ट सर फिर से समझो ना क्या समझ में नहीं आया बेटा, लास्ट में बताओ। सर 1000 वाला 1000 कैसे हुआ? पहले इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 12.3 बार आया, फिर मैंने वापस से इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अभी भी डेसिमल के बाद, अब डेसिमल के बाद वाला जो पहला डिजिट है दैट इज माय रिपीटिंग वन। प्लीज स्टॉप योर वीडियो। डेसिमल के बाद वाला जो पहला वीडियो है डिजिट है वो रिपीटिंग हो रहा है, तो मैंने वापस से इसे 10 से मल्टीप्लाई किया, तो आई एम हैविंग 1000x इज इक्वल टू 123.3 बार। नाउ व्हाट आई डिड, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सबट्रैक्ट किया, तो आई एम हैविंग 1000x माइनस 100x इज इक्वल टू 123 प्लस 0.3 बार minus 12 minus 0.3 बार। तो फाइनली व्हाट आई हैव, 1000 में से 100 गया तो 900x, 0.3 बार विल गेट कैंसल्ड, 123 में से 12 गया तो आई एम हैविंग 111। सो x इज इक्वल टू 111 अपॉन 900। बात समझ में आ गई? से यस और नो? Yes, sir. चलो। सर सर इधर 12 माइनस 0.3 क्यों एंडिंग में, उधर 12 प्लस 0.3 ना? बेटा दोनों इक्वेशन को जब सब्ट्रैक्ट किया, 100x was 12.3 बार, that I wrote as 12 plus 0.3 बार, ठीक है। 1000x was 123.3 बार, that I wrote as 123 plus 0.3 bar. Now I am subtracting the two equations, so I am having 1000x minus 100x is equal to 123 plus 0.3 bar, माइनस किया, ऊपर वाली इक्वेशन को लिख दिया 12 plus 0.3 बार। जब ये माइनस ब्रैकेट साइन के अंदर जाएगा तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, that is equal to 123 प्लस 0.3 बार माइनस 12 माइनस 0.3 बार, ये 0.3 बार कैंसिल हो गया, फाइनली आई एम गेटिंग 111। समझ में आया? ठीक है, चलो ठीक है। फिर वी आर नॉट इन ए पोजिशन टू स्टार्ट एनीथिंग फर्दर, ओके। ऑल्दो